غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ جدہ میں فلسطین کے لیے OIC وزرائے خارجہ کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، اسپتالوں، اسکولوں، کیمپوں پر حملے انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ 2 سال سے معصوم فلسطینیوں کو بدترین بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فلسطین میں قحط کی صورتحال ہے، فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ پاکستان عرب ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ بحران پر OIC وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ مسترد، مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا قیام منظور نہیں، غزہ میں فوری جنگ بندی، امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک پیغام۔ ترکیہ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی منصوبہ ناقابل قبول، فلسطینی عوام اور ان کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں 2 ریاستی حل کے حصول کی امید ہے۔ غزہ میں جبری قحط انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ فیصل آباد میں 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کیس میں بڑا فیصلہ۔ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، کمل شوزیب، احمد چٹھا، رائے حسن نواز، اسماعیل سیلا، راشد شفیق، انصر اقبال، بلال اعجاز سمیت 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا۔ 16 ملزمان کو 3 سال قید۔ فواد چودھری اور زین قریشی مقدمے سے بری۔ فیصل آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے 109 ملزمان میں سے 75 کو سزائیں سنائیں، 34 کو بری کر دیا۔ بھارت نے پاکستان کو سیلاب کے خطرے سے متعلق 24 اگست کو سفارتی ذرائع سے آگاہ کیا۔ سیلابی صورتحال پر آگاہی واٹر کمیشن کے ذریعے دینا ہوتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کی تمام شقوں کی تعمیل کا پابند ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، جس سے خطے کے امن و استحکام پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا پاکستان کے حدود میں داخل۔ پانی کی سطح بلند ہو گئی، دریاؤں اور ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر سیلاب سے تباہ کاریاں۔ پاک پتن سمیت متعدد نشیبی علاقے زیر آب۔ نالا ڈیک میں 30,000 کیوسک کا ریلا کنگرا سے گزرنے لگا۔ حفاظتی بند نہ ہونے سے دیہاتوں کو شدید خطرہ۔ تربیلا ڈیم کا لیول 1549 فٹ سے تجاوز کر گیا۔ منگلا 76% بھر چکا۔ راول، خانپور اور سملی ڈیمز میں بھی سطح بلند۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کی آمد 5,43,000 کیوسک اور اخراج 5,07,000۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی۔ 26 جون سے 24 اگست تک 798 افراد لقمہ اجل بنے۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 406 افراد جان سے گئے۔ 7,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ 5,500 سے زائد مویشی بھی ہلاک۔ ریسکیو آپریشن میں 1,06,000 سے زائد افراد کو بچایا گیا۔ ملک بھر میں 30 اگست تک شدید بارشوں کا الرٹ جاری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور پوٹوہار میں آج پھر بارش کا امکان۔ وفاقی وزیر داخلہ سے ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سکندر مومنی کا خیبر پختونخوا گلگت میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے قیمتی جانوں کی ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ ایران کی پاکستان کو سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تعاون کی پیشکش۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، آزمائش میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ محسن نقوی نے مدد کی پیشکش اور اظہار یکجہتی پر ایرانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ پاک فوج کی شانگلہ اور بونیر میں امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج کی امدادی ٹیموں نے بونیر اور شانگلہ میں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔ کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر اشیاء زندگی تقسیم کی گئیں۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیموں نے متاثرین کا طبی معائنہ بھی کیا۔ اہل علاقہ نے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ کراچی میں 27 اگست سے شروع ہونے والی بارشوں کا امکان ختم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق فی الحال شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ اگست کے آخر تک سندھ میں بھی تیز بارش کا امکان نہیں۔ کراچی سمیت سندھ میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان رہے گا۔
BISP मुल्क से गुर्बत बेरोजगारी के खात्मे में किरदार अदा कर रहा है। कैशलेस मईशत, करप्शन और इस्तेहसाल के खात्मे में मुआविन है। मुस्तहिक अफराद को डिजिटल वॉल्ट के जरिए निज़ाम के तहत रकूम की फराहमी आसान हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने BISP के तहत तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि BISP के तहत डिजिटल वॉल्ट का क़याम अहम पेशरफ्त है। डिजिटल वॉल्ट का निज़ाम कैशलेस मईशत की जानिब अहम कदम है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 1 करोड़ मुफ्त मोबाइल सिम की फराहमी का भी आगाज़। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मुकदमा। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान का 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म दे दिया। बहरे-ए-कायद में खूनी हादसात ना थम सके। रिग रोड अंडरपास में तेज रफ्तार मज़दा ने 2 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 खातून शदीद जख्मी। बस ड्राइवर की फरार की कोशिश, पुलिस ने ताक़ुब करके गिरफ्तार कर लिया। मज़दा भी तहवील में ले ली। कौमी असम्बली के हल्के N 129 में ज़िमनी इलेक्शन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। हमाद अजहर का इलेक्शन के लिए जमा करवाए गए कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला। हमाद अजहर कुछ देर में बाकायदा ऐलान भी करेंगे। हमाद अजहर ने भांजे अरसलान अहमद को टिकट देने का फैसला किया है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रॉ के मज़मूम मकासद को बेनकाब कर दिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में गैर मुल्की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात। गैर मुल्की दहशतगर्द रॉ की पुश्त पनाही में सरगर्म। गैर मुल्की दहशतगर्द काबिज अफवाज के अड्डों के पास आज़ादाना घूमते फिरते हैं। ट्रेनिंग एरियाज में भी देखा गया। गैर मुल्की दहशतगर्दों का कश्मीरी मुजाहिदीन या पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का खदशा। पाकिस्तान ने खुसूसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आलमी बिरादरी के साथ शेयर कर दी। ग्यारहवें कौमी मालियाती कमीशन का पहला इजलास 29 अगस्त को तलब। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत करेंगे। इजलास में वफाक मालियाती अदाद शुमार सूबों के सामने रखेगा। कर्ज पर सूद की अदायगी और इंसदादी दहशतगर्दी अखराजात से भी सूबों को आगाह किया जाएगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर्स ग्रांट की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में तालीम के लिए खर्च होगी। 40 लाख से ज़ायद बच्चे मुस्तफीद होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक फंडिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन फंड के तहत मंजूर की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म थॉकसॉन शिनावात्रा का इशाया। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एहतराम, मुआशी ताउन, तजारती रवाबित और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। दोनों रहनुमाओं में सकाफती सफारतकारी, नौजवानों की डिजिटल तरबियत और इदारा जाती इस्लाहात के तजुर्बात पर मुफस्सिल तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर तिजारत जान कमाल का 4 रोज़ा दौरा बांग्लादेश मुकम्मल। अहम हुकूमती मुशीरों से मुलाकातें। बांग्लादेश के मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। बांग्लादेश के अहम इदारों के हुक्काम से तिजारती उमूर पर गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारती वर्किंग ग्रुप के क़याम का मुआहदा तय पाया। हुकूमत का इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला के रेलवे हेडक्वार्टर्स आमद। हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। कौमी सतह पर रेलवे सिक्योरिटी, तजावुज़ात के खात्मे और नई ट्रेन सर्विस पर बड़े फैसले। रेलवे की बहाली का नया लाए अमल, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मुश्तरका ऑपरेशन के मामलात पर गौर। कुरान पाक में बहन का विरासत में हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकार कर सकते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स से सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, बहनों से खिदमत तो करवाई जाती है मगर जायदाद में हिस्सा नहीं देते। दीरबाला में पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से 1 शहरी जाँ बहक। 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
मुजफ्फर गढ़ में बहन को छेड़ने से मना करने पर ओबाश नौजवानों का भाई पर तशद्दुद और फायरिंग। ओबाश नौजवान 9वीं जमात की तालिबा को स्कूल जाते हुए हिरासा करते थे। लड़की के भाई के मना करने पर मुलजिमान ने उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। दौरान इलाज डॉक्टर्स को नौजवान की टांग काटना पड़ गई। मुतासरा नौजवान की वालदा ने इल्जाम आयद किया, पुलिस बासर मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। गजा में इस्राएली फौज का अल नसर अस्पताल पर हमला, 5 सहाफ़ी समेत 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहीद सहाफ़ियों की मजमूई तादाद 244 हो गई। सुबह से जारी हमलों में 19 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 11 अफराद भूख से जिंदगी की बाजी हार गए। 2 बच्चे भी शामिल। ग़ज़ाए क़िल्लत से अमवात की तादाद 300 तक पहुँच गई। बच्चों को कत्ल करने वाला इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म पागल और बेरहम है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का इजहार बरहमी। गजा के लिए मजीद $24 मिलियन इमदाद का ऐलान। कहा, फ़लस्तीन के लिए फोटेला काफिला 31 अगस्त को स्पेन और 4 सितंबर को त्यूनिस से कश्तियों के जरिए रवाना होगा। पाकिस्तान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक शामिल होंगे। ईरान अमेरिका के मुतालबात के आगे किसी सूरत नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का 2 टोक पैगाम। वाज़ेह किया कि वो ईरान को फर्माबरदार बनाने के ख्वाहां अमेरिका के खिलाफ सख्ती से खड़े होंगे। तेहरान में तकरीब से खिताब में अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि धमकियों से अमेरिका से बातचीत नहीं हो सकती। वो लोग जो ईरान को अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की धमकियाँ देते हैं वो हकीकत से नावाकिफ हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 6 अफराद शहीद, 86 ज़ख्मी। खबर रसां इदारे के मुताबिक हमलों में सदारती कॉम्प्लेक्स, ईंधन के गोदाम और पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि हमले हूसियों की जानिब से इसराइल और इसके शहरियों पर बार बार किए जाने वाले हमलों के जवाब में किए गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में खौफनाक हादसा, ट्रेलर और ट्रैक्टर में तसादुम के नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए, 43 जख्मी। हादसा उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर अलीगढ़ जिला में पेश आया। हादसे की शिकार ट्रैक्टर ट्रॉली राजस्थान जा रही थी, 61 यात्री सवार थे। पीसीबी की वनडे के लिए मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को कप्तान बनाने की तरदीद। टेस्ट मैचों में शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान बनाने की खबरों की भी तरदीद। पीसीबी ने कहा, ताहाल ना तो सिलेक्शन कमेटी में ये मामला ज़ेर गौर आया है और ना ही किसी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील की गई है। तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुपये स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। गुल फिरोजा और नजीहा अलवी टीम से आउट। ईमान फातिमा वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। मुनीबा अली, आलिया रियाज, डियाना बेग, नशरा सिंधु, नतालिया परवेज भी स्क्वाड में शामिल। सदफ शम्स, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीर, सिद्रा नवाज भी स्क्वाड का हिस्सा। 15 रुपये स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक खेली जाएगी। प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए हुकूमत की तरफ से हॉकी फेडरेशन को ग्रीन सिग्नल मिल गया। कौमी हॉकी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट की तस्दीक, कहते हैं प्रो हॉकी लीग में शिरकत करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। लीग के लिए भरपूर तैयारी करेंगे। लिथुआनिया में आलमी सतह पर कुत्तों की रेस का मुकाबला। आलमी कॉर्गी रेस में दुनिया भर से 120 टीमों ने हिस्सा लिया। दिलचस्प इवेंट में मुख्तलिफ मुकाबले शामिल थे। 2 रोज़ा मुकाबला देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग लिथुआनिया के दारुल हुकूमत पहुंचे। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने और शायरी को नई जिहतों से रूशनास करवाने वाले आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। अहमद फराज की शायरी अदबी ज़ौक़ रखने वालों में आज भी मकबूल है।